powdered sugar mixed with corn flour. So yeah, we have icing sugar here. In case someone is not able to procure it from the market या कहीं से और से, so I have also shared how you can make this at home, which is basically 1 cup of grain sugar and you all can mix it with 1 tablespoon of corn flour and just blitz it up. मतलब आप उसको मिक्सी में grind कर सकते हो. Then what we have here is 125 grams of refined flour, which is मैदा. 125 grams of मैदा है आपके इधर. This is one ingredient जो मैंने last में mention किया है, which is castor sugar. Castor sugar will not be used during the recipe. इसको हम बाद में हम use करेंगे castor sugar को. Okay. So अब let us start. I hope everyone's ready and I hope I can start right now. If anyone's baking along with me, you all can let me know. You all can put a thumbs up or you can somehow just convey it in the chats as well. So अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना साबले कुकीज. So पहले हम लेंगे अपना 125 grams of अमूल salted butter. Yeah, so इसमें it is very much preferable कि हम salted butter use करें rather than unsalted butter because salted butter gives it the flavor. ठीक है, तो अगर unsalted भी हम use कर रहे हैं तो सबसे पहली बात it becomes expensive and सबसे दूसरी बात that you'll have to add salt to it. Okay, so what we are going to do is first थोड़ा सा हम बटर को क्रीम करेंगे. क्रीमिंग मींस आपका ये जो बलून विस्क है या फिर आपके पास जो इलेक्ट्रिक विस्क होगा उससे आपको क्रीम करना है. समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये थोड़ा सा वन thing that I had mentioned also in things that you will have to keep ready, that this butter has to be at room temperature without fill. Make sure that it is not chilled, it is at room temperature, so that when you are creaming it, वो बहुत easily cream हो. जैसे आप देख सकते हो अभी, you all can see how easily it has creamed up. Does someone have a doubt? Okay, I'll carry on. So in this creamed butter, what we'll do is we'll add अपना 60 grams of icing sugar. हम 60 grams of icing sugar इसमें ऐड करेंगे. $60 grams of icing sugar. Okay, so this in icing sugar you have to make sure कि आप use करो उससे पहले आप उसको you sieve it, मतलब आप छान लो उसको, so that icing sugar has the एक उसमें ना lumps आ जाते हैं. So while we are creaming the butter and sugar, हमें we have to make sure, हमें ये make sure करना है that इसमें कोई lumps ना हो. So once that is why इसको छान लेना, sieve कर लेना, it's very important. So हम यहाँ पे क्रीम कर रहे हैं बटर एंड आइसिंग शुगर को. So those who are doing with me, अगर आप hand whisk से कर रहे हो, handheld whisk से, so you have to cream it for around 2 to 3 minutes. And जो लोग electric whisk use कर रहे हो, तो you all can do it in 1.5 minute. 1.5 minute में आपका क्रीम करके हो जाना चाहिए. तो बेसिकली नो कि ये कैसे ये हो गया है, आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. यू विल सी दैट कि ये जो बटर है येलो कलर का था जो हमने डाला था, इट विल स्लोली टर्न पेल येलो इन कलर, मतलब लाइट येलो हो जाएगा. ये देखो, आप देख सकते हो ग्रेजुअली जैसे विस्क कर रहे हैं हम, इट इज टर्निंग लाइट येलो इन कलर, पेल येलो होते जा रहा है ये कलर में. हमारा ये करने का मेन पर्पस इज दैट बटर एंड शुगर सबसे पहले क्रीम हो जाए, and secondly this results into formation of air bubbles. So air bubbles ऐसा whisk करते हैं तब air bubbles या फिर air इसके अंदर incorporate हो जाता है डो के अंदर, which is a very important step while you're baking. So yeah, अभी हम देख रहे हैं कि ये हो गया है. You all can see that it is quite fluffy. It is very fluffy in texture. Or that color is a very important thing to note down while you're doing this. देखो, it is light yellow in color, it is quite fluffy as well. So in this अभी हम इसमें डालेंगे हमारे dry ingredients along with the vanilla essence. So vanilla essence मैंने आपको बताया नहीं था. इसमें what we have to do, इसमें 1 teaspoon of vanilla essence डालना है. Vanilla essence. Okay, so यहाँ पे एक टिप है. So for those who are making it in chocolate flavor, आपको vanilla essence डालने की जरूरत नहीं है. और if you are doing it in any other flavor, तो आप वो flavor का essence भी इसमें डाल सकते हो.
देखो वेनिला एसेंस डाल के पहले उसको मिक्स कर लेना है विद द बटर एंड शुगर, समथिंग लाइक दिस। तो आप यू कैन ऑल्सो स्मेल दैट फ्रेग्रेंस ऑफ वेनिला, आपको खुशबू आ जानी चाहिए वेनिला की। सी इट्स क्रीम्ड सो वेल। अभी हम इसमें डालेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट इसमें 120 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, 125 grams of maida. Is anyone baking along, or would anyone like me to go a bit slower? So please let me know. Or if you're stuck on any step, please आप मुझे बताइए, so I'll go a bit slow. Um, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। सो इसमें हमने फ्लावर ऐड कर लिया है। अभी हम Okay, I'll go a bit slower. Do you want me to explain the whole recipe अब तक जो हुआ है वो, या फिर I can continue? So हमने यहाँ पे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। हमने इसमें 125 ग्राम्स ऑफ मैदा डाला हुआ है। इसमें हम डाल रहे हैं 60 ग्राम्स ऑफ राइस फ्लावर। सो अगर आप पूछोगे मुझे इसमें राइस फ्लावर क्यों कंपलसरी है, या कंपलसरी है राइस फ्लावर डालना, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिंग राइस फ्लावर टू कुकीज, बिकॉज कुकीज में जनरली यू डोंट हियर कहता कि राइस फ्लावर डालते हैं या समथिंग। सो साबले कुकी जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो टेक्सचर है दैट इज वेरी मच लाइक सैंड। तो ऐसे कुकीज में जब वो टेक्सचर आपको लेके आना है, तभी राइस फ्लावर है ना वो बहुत आपको हेल्प करेगा। इट विल गिव यू दैट सैंडीनेस टू इट, इट विल गिव यू द माउथ फील जो आपको वो चाहिए, वो जो माउथ में से पूरा मेल्ट हो जाना चाहिए, जैसे ही मुंह पिघलना चाहिए। तो राइस फ्लावर से ये चीज अचीव होता है। इसके लिए प्लीज आप कुछ भी करो, बट प्लीज आप राइस फ्लावर को सब्स्टिट्यूट मत करो। ओके, सो अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो मैंने आपको बोला आइसिंग शुगर इज ऑल्सो समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रेसिपी। आइसिंग शुगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली आइसिंग शुगर घर में बना सकते हैं विथ 1 कप ऑफ ग्रेन शुगर, जो आपके पास नॉर्मल शुगर जो होता है शुगर क्रिस्टल्स, उसको एंड 1 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। आप उसको जब मिक्सी में ग्राइंड कर दोगे तो आपका आइसिंग शुगर बन जाएगा। तो यू ऑल कैन यूज दैट, प्लीज डू नॉट स्किप आउट, आइसिंग शुगर इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी इन दिस। Any other question? Okay, so हमने यहाँ पे ये डाल दिया है। So right now what we'll be doing is हम इसको ये कर देंगे, we'll fold the dry ingredients in the butter. हाँ, कोको पाउडर अगर है किसी का, कोई चॉकलेट फ्लेवर बना रहा है तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ आप आपका कोको पाउडर भी डाल के मिक्स कर सकते हो। वीगन, सो इसमें एज सच वीव नॉट, बटर को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे अनफॉर्चुनेटली। इसमें यू नीड द गुड ओल्ड बटर बिकॉज दीज आर ट्रेडिशनली फ्रेंच बटर कुकीज। तो आप इसको बटर तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे। आई एम सॉरी फॉर दैट। Okay, so how much cocoa powder in this recipe? हमने 125 grams of refined flour लिया है। So it now depends on person to person, आपको कितना cocoa content चाहिए। Personally, if I am using Hershey's का cocoa brand, I would substitute 25 grams of refined flour with 25 grams of cocoa powder. So अगर 125 grams है of flour है and I want to make chocolate sable cookies, तो मैं 100 grams of refined flour लूंगी और मैं 25 grams of cocoa powder लूंगी। I hope you got your doubt clear. Okay, तो अभी आप देख सकते हो that it is well mixed. If you want, no, so आप डाल सकते हो, डेफिनेटली आप डाल सकते हो, बट जब हम खाएंगे आप देख सकते हो कि इसमें ना जो बटर का क्वांटिटी है ना
वो बहुत ज्यादा है, so it's 150 grams. So when you put 150 grams of वनस्पति घी into this, तो है ना उसका फ्लेवर नहीं देगा आपको, जो बटर का जो फ्लेवर आना चाहिए in these cookies, आपको वो फ्लेवर नहीं आएगा. हाँ, definitely it will be much cheaper, much easier also to work with probably, but no, I would not recommend using वनस्पति घी instead of butter in this. So हाँ, अभी आप देख सकते हो. हाँ, okay, sorry. Okay, so for you all who want me to go slower, I'll again explain the method that I have done till now. मैंने फर्स्ट लिया था इसमें 150 grams of butter, 150 grams of butter which was at room temperature. मतलब एटलीस्ट 30 मिनट्स आप फ्रिज से बाहर, 30 मिनट्स के पहले आप फ्रिज से बाहर उसको निकाल के रख दीजिए, सो दैट वो स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी हो. ठीक है, सो 150 grams of butter. फिर उसमें मैंने डाला था 60 grams of icing sugar. I have told you already 60 grams of icing sugar. आइसिंग शुगर कैसे बना सकते हो. So 60 grams of icing sugar को आपको बटर में विस्क करना है. Whisk करना है for approximately 2 to 3 minutes if you are using a hand whisk just like I was, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिक whisk यूज कर रहे हो तो आप approximately 1.5 minute at medium speed which is at 3 number आप उस पे आप कर सकते हो ये. फिर once it is creamed, उसमें मैंने डाला था vanilla essence. So this is because I am making plain साबले cookies, that is why मैंने इसमें vanilla essence डाला था. वेनिला एसेंस डालने के बाद अगेन आई हैड मिक्स्ड इट अप. उसमें फिर मैंने डाले थे मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सिंस आई एम मेकिंग प्लेन साबले कुकीज, मैंने डाला था 125 grams ऑफ मैदा, 125 grams ऑफ मैदा एंड 60 grams ऑफ राइस फ्लावर. सो 150 grams ऑफ मैदा एंड 60 grams ऑफ राइस फ्लावर. सो मैंने उसको साथ में यहाँ पे मिक्स कर दिया था. मैंने बटर एंड शुगर मिक्सचर में उसे फोल्ड कर दिया था. ओके, सो ये चीज बहुत ध्यान देने जैसी है. इफ यू आर नॉट, आप अगर स्पैचुला के साथ नहीं कर रहे हो, आप अगर हाथ से भी ये चीज करना चाहते हो, यू कैन डू इट. ठीक है, बट देन यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप फोल्ड कर रहे हो, आप इसको आटे की तरह गूंद नहीं रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे आप जो गूंदते हो ऐसा ऐसा ऐसे करना, सो नहीं वो करना, इट इज स्ट्रिक्टली समथिंग दैट यू शुड नॉट डू. आप इसको सिर्फ मिक्स करो जेंटली हाथ से, आप सिर्फ फोल्ड करो समथिंग लाइक दिस हैंड से, समथिंग लाइक दिस, सो दैट आपका जो मिक्सचर है पूरा वो प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट हो जाए. आपको टच में उसका ऐसा फील आना चाहिए, ऐसा. इट शुड बी समथिंग लाइक दिस. ओके, समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज वेयर हमारा डो रेडी हो चुका है. हमारे डो को सिंस आप देख सकते हो दैट इट इज वेरी सॉफ्ट इन टेक्सचर, एंड हम इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज कन्वर्टिंग इट इनटू अ लॉग. तो ऐसा जब सॉफ्ट डो होता है तभी आप इसको लॉग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो प्रॉपरली लॉग शेप में अच्छे से कन्वर्ट नहीं होगा, आपका वो लॉग नहीं फॉर्म होगा. सो इसके लिए जब आप ऐसा करते हो, व्हाट यू हैव टू डू इज द नेक्स्ट स्टेप. ये जो डो है इसको आपको फ्रिज में रखना है फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स. हमें याद रखो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हमें इस डो को सिर्फ कूल करना है, चिल करना है, फ्रीज नहीं करना है, विच इज वाई हम इसको फ्रिज में रखेंगे फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स. 30 मिनट्स जब आप रखते हो तभी वो जो बटर इन इट, द बटर इन इट डज नॉट हार्डन सो मच, एंड आपका डो जब भी आप बाहर निकालते हो आफ्टर 30 मिनट्स इट इज स्टिल सॉफ्टर एंड यू ऑल कैन इजीली, आप उसको इजीली लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो. सो राइट नाउ मेरा डो हो चुका है and I will keep it in the fridge. But again, one important thing that I have to tell you is that अगर आप इसको फ्रिज में रख रहे हो, you have to make sure that it is covered. ठीक है, आप इसको अनकवर्ड फ्रिज में नहीं रख सकते. एंड one of the main reasons for this is that जब भी आप इसको अनकवर्ड रखते हो फ्रिज में, तो इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, the moisture content in the dough, so it loses out, वो ड्राई हो जाता है. एंड हमें नहीं चाहिए कि हमारा जो कुकी है वो ड्राई आउट हो, एंड दैट इज वाई हम इसको रैप करेंगे. मैंने anyone has a question? Okay, so yeah,
I can't hear you. You can type it if possible ho. ओके सो मैं बताती हूँ जो नेक्स्ट स्टेप है मैम या बोलो ना हाय कैन यू टेल मी द क्वेश्चन प्लीज ओके आई विल गेट बैक टू आवर रेसिपी आई विल गेट बैक सो अभी हमने डो को यू नो हमें फ्रिज में रखना है उसके लिए मैंने बोला आपको कवर करना है सो आपको इसको कवर कर सकते हो क्लिंग रैप से और यू कैन कवर इट इन एन एयर टाइट कंटेनर सो राइट नाउ मैं इसको क्लिंग रैप में ये जो है हमारा बर्तन उसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रखूंगी हाँ यू वांट टू शो योर डो यस यू कैन शो मी द डो if you are using what I did not hear the question. If you are using grain sugar instead of icing sugar, what portion has to be treated? ओके सो मैंने तभी भी बोला था मैं अभी भी बोलती हूँ इन दिस आप आइसिंग शुगर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे द रीजन बीइंग आइसिंग शुगर में कॉर्नफ्लावर होता है एंड ये कुकीज को बाइंड करने के लिए दैट इज टू मेक श्योर दैट दीज कुकीज यू नो वो बाइंडिंग एजेंट का काम कॉर्नफ्लावर करता है स्पेशली सिंस दीज कुकीज आर एगलेस तो बाइंडिंग एजेंट का काम कॉर्नफ्लावर करेगा एंड यस यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट आइसिंग शुगर इट इज वेरी इजी टू मेक एट होम प्लीज आप घर पे ही बना लीजिए एंड विदाउट फेल आप आइसिंग शुगर ही यूज कर लीजिए जिसको डो बताना था या आई सी द डो Ayushi, this या हाय या one. Hi. सॉरी हाय आई डिडंट हियर या हाय Hi. हाँ या how are you Is this proper? wait I cannot see just a second have you started Hina, हाँ ये just a तारी माने second. के जो है Yeah, can you show who's this This is grass. I cannot see your dough what's your name can you please tell me yeah so the chocolate dough yeah it is perfect it is actually very perfect yeah perfect anyone else who wants to show me the dough ક્યાંથી બધી ઇન્ફોર્મેશન મળે છે if your work is done please can you mute yourself please આયુષી yeah hi who's this okay hi Pooja yeah okay yes your dough is done थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर लो but yes your dough is done yes yeah Suchi yes थोड़ा सा हल्का सा again mix it थोड़ा सा but yeah it's it's done yeah you don't have to mix it's done anyone else who wants to show me microphone is unmuted hello yeah okay so I guess everyone has showed me the dough and हाँ जिसने भी बताया it's actually perfect so what you have to do right now is आप आपके dough को cover up कर लो and उसको fridge में रखो for at least 30 minutes now okay and right now till that is done I think we can discuss the flavor options that you want to discuss and also मैं अभी आपको next process भी बताऊंगी तब तक पहले हम flavor options discuss कर लेते हैं does anyone have you all can unmute and you all can talk to me that will also be fine आप unmute करके मुझसे बात कर सकते हो अगर आपके पास कुछ फ्लेवर है या आपको चाहिए that you know मैं आपको कुछ फ्लेवर ऑप्शंस बताऊं तो yes you can do that as well
Anyone there? Okay, so what I'll do is I'll tell you all the flavors that I feel that are very super yum. Just a second. So what one of my favorite flavors is the Nutella sable cookies. So in Nutella sable cookies, what? Okay. Fruit pulp. Okay, yes, you can put fruit pulp, but then जब आप fruit pulp डालते हो तभी आपको याद रखना है that since it is liquid in nature, आपको उसको बटर के साथ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मैदे में किया था फॉर कोको पाउडर, वैसे ही 150 ग्राम्स ऑफ बटर आप उसके बदले 20 ग्राम्स ऑफ फ्रूट पल्प एंड 130 ग्राम्स ऑफ बटर यूज कर लीजिए. सो यू नो दैट विल नॉट गिव इट अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी एंड आपका जो डो है वो परफेक्ट रहेगा. यू नो, नॉट टू मच लिक्विड, नॉट टू सॉलिड, लाइक नॉट टू थिक रादर. एनी अदर क्वेरी? How do we have to cover it? हाउ डू वी हैव टू कवर? सो ओके, सो मैंने क्लिंग रैप में कवर किया था मेरा डो. क्लिंग रैप, आई शो यू ऑल क्लिंग रैप. या क्लिंग रैप. सो क्लिंग रैप में कवर किया था. इफ आपके पास क्लिंग रैप नहीं है, आप किसी डिश के साथ भी उसको कवर अप करके रख सकते हो, या फिर वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अगर आप आई वुड सजेस्ट इफ आप एक एयर टाइट कंटेनर में आपके डो को डाल दो एंड उसको फ्रिज में रख दो फॉर 30 मिनट. सिर्फ वी हैव टू मेक श्योर कि वहां उसे मॉइस्चर ना लगे, उसका मॉइस्चर ड्रेन आउट ना हो. सॉरी, उसका मॉइस्चर ड्रेन आउट ना हो. या yes. Okay, so I was getting to that only. नटेला वाला जो मैंने आपको बताया. सो नटेला वाले में हम क्या करते हैं कि हाँ, सबसे पहले यस ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो. आई विल आंसर दैट फर्स्ट. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप ड्राई फ्रूट्स को प्रेफरेबली चॉप करके डाल रहे हो. सो जब भी एक जो प्रोसेस है दैट यू नो कटिंग द लॉग, दिस लॉग विच यू कैन सी हियर, तो वो जब हम हमारा जो कुकी जो लॉक में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बी मच इजियर अगर आप चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हो इसमें. सो या गोइंग टू द नटेला वन. नटेला में आप क्या कर सकते हो, नटेला फ्लेवर्ड अगर साबले आपको बनाना है, 130 ग्राम्स ऑफ बटर एंड 20 ग्राम्स ऑफ नटेला. या प्लीज इससे कम मत करना बटर का रेशियो, बिकॉज फैट कंटेंट जो आपको चाहिए वो बहुत कम हो जाएगा एंड वी डेफिनेटली नीड अ लॉट ऑफ बटर इन दिस रेसिपी. एंड you can add chopped hazelnuts to it. Then one more flavor combination is orange. Orange cookies, orange sable cookies are also super yum. And उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप you can add some around 20 ml of orange juice to it. Orange pulp will also be okay. And orange pulp and ये juice को आप mix कर सकते हो. Also add orange zest to it. Orange zest मतलब ऑरेंज का जो छिलका होता है, हम जो चीज ग्रेट करते हैं, तो चीज ग्रेटर से उसके छिलके को स्लाइटली आप जब यू ग्रेट इट अगेंस्ट द ग्रेटर, तब वो थोड़ा थोड़ा उसका छिलका है ना बाहर निकलता है, विच इज कॉल्ड एज द जेस्ट. तो आप उसमें ऑरेंज जेस्ट भी डाल सकते हो, तो आपको बहुत सुपर अरोमा देगा ऑरेंज का. मगई पान के लिए ओके, सो मगई पान के लिए आप क्या कर सकते हो इज चॉप्ड अप पान के पीसेस, दैट विल बी अमेजिंग. एंड थोड़ा सा हल्का सा गुलकंद. एंड इसमें आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास पान का फ्लेवरिंग है तो इंस्टेड ऑफ वेनिला एसेंस इतना सारा मत डालो, पान का हाफ ही डालना, हाफ टी स्पून. बट हाँ, पान का फ्लेवरिंग डालो, चॉप्ड अप पान डालो उसमें. गुलकंद अगर है तो गुलकंद डेफिनेटली डालना. सब्स्टिट्यूटिंग अगेन दैट 130 grams of butter and 20 grams of gulkan. Yes. Okay, Nutella का measurement again. Okay, so 150 grams of जो butter fat content जो है 150 grams से हम 130 grams ही सिर्फ butter लेंगे and सिर्फ 20 grams Nutella लेंगे. It is possible to use fruit jam. Yes. It is possible. Again, same proportion 20 grams of fruit jam to it. Clean that dough पे बनाया कि क्लिंग रैप. ओके, सो आप वेसल को भी कर सकते हो, आप डो को भी कर सकते हो. एनी विच वेज दैट इज फाइन. बंद है भाई, एंडेड. Okay, so right now there's less than a minute or something remaining. तो please make sure करो कि if the meeting ends, ये एक रिकरिंग मीटिंग है, आप अगेन जो आपको लिंक दिया गया था आप वो लिंक पर क्लिक करें और फिर से you join me back again for our baking demo.
So has it ended? It's unlimited. Okay, so okay, so we can continue. It's been changed to unlimited. Okay, thanks. So हम continue करेंगे. I did not get you. हाँ, so flour. Okay, yes, you can add flour. आप chocolate उससे substitute कर सकते हो. But एक इसमें एक आपको problem आएगा, which is cocoa powder है ना, आपका जो Nutella flavor है, since आप already सिर्फ 20 grams of Nutella डाल रहे हो, तो बहुत overpower कर देगा आपके नटेला को. So I would not recommend using cocoa powder. If use करना ही है, preferably something 10 to 15 grams of it would be more than enough. I feel not entirely 25 grams. So you know, less amount of chocolate so that आपका जो नटेला का फ्लेवर है, जो हेजलनट फ्लेवर है मेजरली, वो ओवरपावर ना हो. Any other? ओके, सो अभी आई एम गोइंग टू स्किप अ प्रोसेस. मैं आपको एक प्रोसेस स्किप करके अभी आगे का बताने वाली हूँ. Ayushi, हाय. can you check the dough for me? I had some issues, Yeah, so I'll check it. हंसिनी को दो. हंसिनी. Can you show me your dough? just a second. Can you show me your dough? Yeah. It's good. Okay, thank you. Yes. Welcome. Okay, so as I said, right now मैं आपको एक प्रोसेस आगे का बताऊंगी. Just a second. हमने ये जो किया था, डो हमने जो फ्रिज में रखा है, सो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाई एग्जैक्टली हम स्किप कर रहे हैं राइट नाउ. सो डो को 30 मिनट्स लगेगा चिल करने के लिए. So till then I thought that I would show you the process. Please can you mute please? आप म्यूट कर सकते हो प्लीज. Thank you so much. हाँ, so since the dough will take approximately 30 minutes to chill फ्रिज में, तो हम when it gets out of the fridge, तब हम उसको एक लॉग शेप में कन्वर्ट करते हैं, somewhat like this. So please do not worry. मैं ये शेप कैसे करना है मैं खुली मुकांताने में कीधु ढाकी ने मुक. Do you have any doubt? Please, if you don't, please unmute, mute yourself please. Actually there was a question earlier which I think I have not answered. Hinal, caramel? No, there was a question, right? Okay, so we'll get back. So हम उसको फिर लॉग शेप में कन्वर्ट करते हैं. डू नॉट वरी, मैं आपको बताऊंगी ये लॉग शेप में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. सो ये जब भी लॉग शेप को भी मैंने बनाया है, वो चिल्ड डो से लॉग शेप को बनाया, एंड आप देख सकते हो this is how the chocolate one, this is the chocolate sable recipe that I had made yesterday, and this is how it should look like when you are giving it the shape of a log. And जब आपका ये log shape हो जाता है, तब आप इसे कट करोगे. So let me remind you all, this is the final process before baking. So do not worry, मैं आपको ये log shape बनाना कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी. Right now हमें जो करना है, इस log को approximately 1 centimeter के size में कट करना है, something like this. Approximately, you do not need to actually use a scale to measure and cut. आप approximately आप 1 centimeter का लेके आप कर सकते हो.
ओके सो हमने यहाँ पे इसको 1 सेंटीमीटर के इसमें कट कर लिया है, आप देख सकते हो इसको. So right now what I am going to do is basically start preheating my oven at 150 डिग्री सेल्सियस. so हम ये कुकीज को एक स्लो टेम्परेचर पे बेक करते हैं. इफ यू आर बेकिंग इट एक ओटीजी में, तो आपका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको बेक करोगे. तो फॉर दैट आई एम स्टार्टिंग द प्री हीटिंग राइट नाउ, which is for approximately 10 minutes. 150 degree Celsius for 10 minutes. Okay, yeah. So आप उसको प्रीहीट करना स्टार्ट कर सकते हो एट दिस स्टेज. अगर आप ये आपके पास अवन नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव ओटीजी, तो आप इसको एक कन्वेक्शन अवन में भी बेक कर सकते हो. टेम्परेचर विल रिमेन द सेम, इट विल बी एट 150 डिग्री सेल्सियस ओनली, बट आपका टाइम कम हो जाएगा बिकॉज एक माइक्रोवेव ओटीजी इट टेक्स लेसर टाइम टू कुक. सो दैट इज व्हाई इसमें अगर सिंस अपना जो रेसिपी है इट टेक्स अबाउट 25 मिनट्स इन एन ओटीजी, तो फिर ये एक माइक्रोवेव कन्वेक्शन में इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 15 to 18 मिनट्स. प्रोबेबली 15 मिनट्स में ही आपका हो जाएगा. अगर आप यस इफ यू डू नॉट हैव एनी ऑफ द अबाउ, आप इसको गैस पे भी कर सकते हो. जस्ट लाइक यू नो आप केक बेक करते हो, इट इज द सेम प्रोसेस. आप इसको गैस पे भी कर सकते हो. तो गैस पे आपको क्या करना है, अगेन एक कुकर में अगर कर रहे हो तो कुकर में पहले आप एक स्टैंड डाल दो, उसके ऊपर आप एक प्लेट डाल दो. प्लेट के ऊपर मेक श्योर दैट द प्लेट इज ग्रीस्ड. ओके, ग्रीस कर लो, जिससे आप बटर से ग्रीस कर लो या फिर आप ऑयल से ग्रीस कर लो. एंड उसके ऊपर आपके कुकीज प्लेस करके आप एट लोअर हीट यू कैन बेक इट फॉर अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स. बट अगर आप हीट मीडियम पे रख रहे हो तो आपको 10 to 12 मिनट्स में आपका कुकीज चेक करना होगा. सो व्हाइल दैट इज प्री हीटिंग, मैं इसमें अपने हमारे कुकीज ये ट्रे पे डाल रही हूँ. सो इसमें एक वन थिंग अबाउट दीज कुकीज इज these cookies do not spread. ये spread नहीं होते हैं ज्यादा because of the corn flour in it, because of the rice flour in it, which is why आप इसको इतना पास में भी रख सकते हो. you do not have to worry कि ये cookies एक दूसरे से stick हो जाएंगे या anything like it. और हाँ डेफिनेटली ये तो नहीं होंगे, यू नो दे विल नॉट स्प्रेड, बट हाँ वो हल्के से है ना साइज में बड़े हो जाएंगे. ओके मैंने ये रख दिया है. दिस इज नाउ रेडी फॉर बेकिंग. तब तक एनीवन इफ एनीवन हैज एनी क्वेरीज, अगेन यू नो सिंस आई स्किप दिस स्टेप राइट नाउ, तो इफ एनीवन इज कंफ्यूज्ड प्लीज आप मुझे बताओ, तो यू नो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द प्रोसेस अगेन. डज एनीवन हैव एनी क्वेरी? एनी क्वेरी हिनल? ओके डेफिनेटली आप बना के इसको खा सकते हो डेफिनेटली. सो राइट नाउ अवन इज प्री हीटिंग. ओके सो हाँ तब तक जब तक ये प्री हीट हो रहा है मैं आपको थोड़े और फ्लेवर कॉम्बिनेशंस इसमें बताती हूँ. इसमें एनी क्वेरी? Okay, so while she's reading the question, wheat flour. Okay, yeah, so definitely आप almond flour या फिर wheat flour use कर सकते हो. हाँ ओके सो आप आलमंड या फिर व्हीट फ्लावर यूज कर सकते हो, बट फिर आपका ये जो कुकी का जो टेक्सचर है वो सेम नहीं रहेगा. इट विल डिफर अ लॉट. तो द बेस्ट पॉसिबल इज मैदा, after that almond flour, and after that wheat flour. Again I would really suggest आप almond flour फिर भी ना use करो, but हाँ otherwise you know it remains the same. The measurements will remain the same. आप measurements change मत करो. आप 125 grams of refined flour के बदले आप 125 grams of almond flour ले सकते हो, या फिर आप 125 grams of wheat flour ले सकते हो. Any other? In case of cooker, we need dry heat now. No need to add water in cooker below the stand. Okay, so हाँ कुकर में do not add. You
इट इज मच प्रेफरेबल अगर आप ड्राई हीट में ही कर रहे हो, बिकॉज आप अगर पानी वाले उसमें करते हो तो आपका जो टॉप रहेगा, आप जिससे वो ढकोगे तो उससे वो स्टीम कंडेंस होकर आपके कुकीज पे गिरेगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। यू नो ड्राई में भी उतना होगा, बट आई थिंक पानी अगर डालोगे तो वो बहुत ज्यादा होगा, एंड यू डू नॉट वांट दैट हैपनिंग। तो सिर्फ एक स्टैंड डाल दो नीचे, उसके ऊपर आपका जो ट्रे है कुकीज का, प्लेट है कुकीज का, उसको आप डाल दो, यू नो ग्रीस करके प्रेफरेबली। इफ आपको पार्चमेंट पेपर यूज करना है, जस्ट लाइक आई हैव डन, मैंने यहाँ पे पार्चमेंट पेपर यूज किया है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, वो भी रख के आप आपका कुकीज बेक कर सकते हो। रागी फ्लावर, ओके, रागी फ्लावर नो, ओके, सो एक मैं ना बहुत द नोशन अबाउट दिस कुकीज मैं एक बहुत क्लियर कर देती हूँ। These are meant to be, you know, these are one of those gourmet indulgent cookies जिसमें आप कैलोरीज का काउंट नहीं रखते हो। हेलो, आई कांट हियर यू। हेलो, Hello, I have हाँ missed. बोलो ना, Hello, हाँ बोलो ना। I have missed your dough making session. So can you Okay. just repeat the dough measurements and all? Can you just repeat the dough measurements? Okay, yeah, And I I will can't do hear that. your voice is breaking. My voice is breaking. Hello, I hope no one. I can't. Hello. I think I can hear you clearly. I think there must be some network issues from your side, probably. Is there a problem faced by anyone else? You know, if you all cannot hear me properly. Hello. I can't. There is a network issue, so I can't hear you properly. What I'll do is Hello. simply I'll be. Hello. Can you mute yourself, please, so I can explain you? I got Now your or question, later? but right now, I'll explain it to you. Please, can you mute, please, so that I'll explain and you will be able to hear it, hear me? Voice is clear. Yeah. So पहले मैं वो रागी फ्लावर वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेती हूँ. After that, I'll get back to you with the dough making process again. So these are purely indulgent cookies. You know, you can see by the fat content. हमने 150 grams of butter use किया है. तो आपको पता चलेगा होगा. These are purely indulgent, एकदम guilty pleasure वाले cookies. So no, I would really not recommend using ragi flour or you know, even substituting it for any other flour for that matter. सो प्लीज इसको हो सके उतना तो प्लीज मैदे में ही बनाओ. आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा इन मैदा ओनली, एंड रागी फ्लावर आपको वो टेस्ट भी नहीं देगा. एनी अदर क्वेश्चन और आई विल गेट बैक टू डो मेकिंग प्रोसेस अगेन. ओके, सो आई थिंक अपना अवन प्रीहीट हो चुका है राइट नाउ. सो व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट आई पुट द कुकीज इन द अवन. I think that is enough. So मैं है ना मेरे कुकीज प्रेफर करती हूँ मिडिल वाले रैक में डालने के लिए. सो यू नो जो भी OTG यूज कर रहा हो प्रेफरेबल है आप मिडिल वाले रैक पे रखो. यू नो हीटिंग दोनों साइड से चालू रखो. टेम्परेचर 150 एंड टाइम मैं आपको बताऊंगी. ओके, टाइम 25 मिनट्स. ओके, सो हाँ, जब तक अभी कुकीज बेक हो रहे हैं तब तक या आई विल सॉल्व योर डाउट अगेन. हाँ, जो डो मेकिंग प्रोसेस है, सो रेसिपी शीट डेफिनेटली आपको ऑलरेडी अगर आपने यू नो लिंक आपने रजिस्टर किया है, आपने ज्वाइन किया है ग्रुप, तो आपको रेसिपी शीट मिल गया होगा. इफ नॉट तो अगेन मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ. 150 grams of butter, room temperature butter, 60 grams of icing sugar का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, that if you do not have तो आप कैसे घर पे बना सकते हो. फिर 60 grams of rice flour, चोखे का आटा, 125 grams of मैदा एंड 1 teaspoon of vanilla essence. सो हमें इसमें क्या करना है, रूम टेम्परेचर वाला जो बटर है उसमें हमें अपना आइसिंग शुगर उसको क्रीम करना है. दैट इज आपको मिक्स करना है विद अ बलून विस्क, हैंड हेल्ड विस्क के साथ आपको उसको क्रीमिंग करना है फॉर अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिनट्स, जब तक उसमें यू नो हल्के से एयर बबल्स ना आ जाए, जब तक वो लाइट येलो इन कलर ना हो जाए. यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइट येलो कलर होना, उसका वो थोड़ा सा फ्लफीनेस आना, बिकॉज
उससे आपको पता चलेगा कि आपके डो में एयर बबल्स इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। फिर आप वंस आपका वो हो गया है, आपका क्रीमिंग प्रोसेस इज डन, आप उसमें वेनिला एसेंस डाल सकते हो, दैट इज 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस। अगेन 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालने के बाद यू हैव टू मिक्स इट अगेन। आफ्टर प्रॉपरली मिक्सिंग द वेनिला एसेंस, आपको इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपके डालने हैं। तो आपके जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है आपके एक साथ ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले ही सिर्फ फ्लावर डालू पहले या फिर सिर्फ राइस फ्लावर डालू, मिक्स करूँ, नहीं, जितने भी आपके जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, इवन इफ आप नट्स यूज कर रहे हो, एड इट टुगेदर एंड देन मिक्स, सो दैट इसमें आपको ज्यादा मिक्स करने की जरूरत ना हो। एंड इसमें जब आप ओवर मिक्स करते हो, सो व्हाट कैन रिजल्ट इज इसमें ग्लूटेन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमें इसमें वो ग्लूटेन फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इसके लिए हमें हल्का सा ही वो मिक्स करना है जब तक वो सब साथ में बाइंड हो जाए, ना कि कुछ ऐसा सेपरेट हो गया या यहाँ पे थोड़ा फ्लावर मिक्स नहीं हुआ है। नो, बट यू जस्ट हैव टू मिक्स इट वेल टिल इट गेट्स बाइंडेड वेल। आपको ओवर मिक्स भी नहीं करना है, प्लीज ओवर मिक्स नहीं करना है। या सो आफ्टर दैट इज डन, आप उसको, आपका जो डो है, आप उसको एक एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर जैसा मैंने किया, आप वो बोल को ही आप ऊपर क्लिंग रैप लगा के आपको उसको फ्रिज में चिल करना है फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। आपको चिल करना है, रिमेम्बर, आपको फ्रीज नहीं करना है, सो दैट इज ओनली टिल 30 मिनट्स। आप उसको फ्रिज में डाल दीजिए। तो ओके, सो नाउ आई विल टेल यू व्हाई चिलिंग प्रोसेस इज सो इम्पोर्टेंट। तो जब आप चिल करते हो डो को, तभी आपका, मैंने जो अभी आपको लॉग वाला बताया प्रोसेस, तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपका डो सॉफ्ट है, दिस डो अगर आपने जिसने भी बनाया होगा, आपने देखा होगा दैट इट इज वेरी सॉफ्ट, वेरी सैंडी टेक्सचर है डो का भी। तो टू मेक इट इनटू अ लॉग एट सच स्टेज इज अ लिटिल बिट इम्पॉसिबल, थोड़ा आपको बहुत तकलीफ होगा। इसके लिए आप इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके लिए ही उसको डो को चिल करना इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो आई थिंक मैंने जो डो रखा था मेरे फ्रिज में, आई थिंक मैंने फ्रीजर में ही रखा था टू मेक इट अ बिट मोर क्विकर इन चिलिंग। सो राइट नाउ व्हाट आई डू इज आई गेट द डो एंड आई विल शो यू लॉग फॉर्मेशन अभी। Till then, does anyone have any other questions right now? You all can ask me. Hello, sorry, yeah. Does anyone have any other questions right now? Um, voices ना, okay, when to preheat the oven. So preheat तभी करना है, approximately 10 minutes prior to baking आप preheat कर सकते हो, that is more than enough. गैस पे भी कर रहे हो तो भी 5 minutes 10 minutes आप कर सकते हो. Is the voice not clear even right now? I got a text that the voice is not clear. Yeah, we can add choco chips. Any types of choco chips are very much, you can add it. Just याद रखो that आप इसमें coverture ना use करो, just compound जो normal आपका मोडे का मिलता है आप वही डालो इसमें. Yeah, that will also taste also very nice. तो हाँ, आप वो डाल सकते हो. Any other question? ओके, सो इफ नॉट तो फिर आई थिंक आई मूव ऑन. आपको जो लॉग का, ओके, आइसिंग शुगर रेसिपी. ओके, सो I have explained it again. Right now I am putting it on the chat box also. 1 cup of grain sugar and 1 tablespoon, just a second, 1 tablespoon of corn flour. इसको आपको मिक्स कर देना है एंड आप ग्राइंड कर देना है. Yes, ingredients and proportions. Okay, as you could not hear, you can my number. Okay, I'll share my recipe right now in case किसी ने भी नहीं देखा है. So right now I'm sharing the recipe photo, so you all can check it out. Okay, just a second. I hope you all can see my recipe right now.
Hello. Uh, just a second. Mm, is there any way possible आप स्क्रीन हटा सकते हो? रौनक, uh, can you remove my other account from the video, please? From the meeting, please. Uh, the host, please. Is there any way possible? No. Hello. Hi, everyone. I hope you all can see me. I've come here from another account right now. So yeah, what I'll be showing you all right now is how to roll the dough into a box. Just a second. Okay. So, फ्रिज में से डो निकल चुका है and you all can see that it is pretty still actually. So yeah, it is pretty chill right now. What you have to do, आवाज नहीं आ रहा है. Uh, just a second now. Ayushi, you can hear me? Yeah, I can hear you. Just a second. Hello. 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 Can everyone hear me now? Okay, so What, Ayushi, what is castor sugar? okay, so castor sugar. Castor sugar is basically fine particles of grain sugar. I'll show you the castor sugar consistency right now. आप देख सकते हो, it is very fine. Powder sugar जितना fine नहीं होता है, but you know this is something जो grain sugar and powder sugar के बीच का consistency. You know, थोड़ा करकरा type का, but not exactly powder. Okay, okay. Okay, that is sugar only, but granules. Okay, okay. Can you not hear me right now? Can you not? You can hear me now properly. Is the voice audible? Okay, so right now what I'll show you is the row process. Okay, so ये हमारा जो row था हमने फ्रिज में रखा था, इसको हमें log में कन्वर्ट करना है. Can you not hear me right now? Ayushi can't hear you. Yeah, just a second. Can you hear me now? Ayushi, I guess your speakers are inactive. Just No, I can hear. reconnect your earphones. Okay, yeah, I'll do. Yeah.
connect. Can anyone hear me now? Connect now. Yes. Sorry. Yeah, really sorry for the trouble. Yeah. So, so this is the door. Yeah. So ये जो डो है मैंने फ्रिज से निकाला हुआ है. It is pretty chilled right now. इसको हमें लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना इज वेरी इजी. आपको इसको बस ऐसे रोल करना है एंड मेक श्योर कि ये जो लॉग फॉर्म है वो परफेक्ट. You can hear me now, na? Log form No, no. you can't. Hello. I see now. Hello. You can hear me now. Yes. Yes. Hello. Yes, Yeah, you yes, can hear yes, me ना. yes. So Yes. Yes. I log form में मैंने इसे कन्वर्ट किया है. मैंने इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया है. एंड अभी जो कैस्टर शुगर जो मैंने आपको बताया कैस्टर शुगर यूज राइट नाउ. कैस्टर शुगर को आप अभी यूज करेंगे. दैट कंप्लीटली लॉग है. लॉग को हमने बनाया है. उसको करना है इन कैस्टर शुगर. ओके. तो टू कोट इट आप उसको ऐसे स्प्रेड कर सकते हो ऑन योर मैट और ऑन द ऑन योर. आप नीचे प्लीज डेफिनेटली कुछ बिछाना. आई कैन माय वॉइस इज ब्रेकिंग. इज इट प्रॉब्लम फेस्ड बाय एनीवन एल्स? हेलो. Okay, so you all can't hear me then. Just a second, I'll try connecting to another phone. Yeah, so till then, what we have to do is जो caster sugar not clear. Yeah, just a second. I'm really sorry. I'm facing some network issues today. I really don't know why. I really don't know why I'm facing a lot of network issues right now. I am trying, to connect to another phone, and I'll put on my earplug so you all can hear me clearly. Just a second. Yeah, just a second. Okay, so I'm trying to connect to another phone. Till then, yeah, please wait for some time. Yeah, I will directly join the link now. Directly link join. Yeah, we'll directly join the link. Just a second, okay. Please let me know. Messages. Yeah. Okay, so अभी मैं आपको जो log का I'm really sorry first of all इतना network issues and all हुआ. Really sorry for that. Till then पहले आपको मैं cookies बता दूं जो oven में हो रहे हैं. You all can see the cookies right now. They are not spreading much
बट स्लाइटली साइज में बड़े होंगे, स्लाइटली। या सो अभी मैं आपको लॉग में जो कन्वर्ट किया है हमने, उसको नाउ हमें कोट करना है इन कैस्टर शुगर। ओके, सो बेसिकली ऐसे ही रोल कर दो, रोल करोगे आप तो वो ऑटोमेटिकली कोट हो जाएगा। इफ यू ऑल कैन सी वो टाइनी टाइनी शुगर पार्टिकल्स आपको दिखेंगे ऑन द डो, which means it's getting coated perfectly. You know, जहां जहां पे भी आपको लगे कि नहीं कोट हुआ है या एनीथिंग लाइक दैट, आप वहां पे ये कर सकते हो। आप यू नो सिंस अभी मेरा लॉग इतना बड़ा हो रहा है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज डिवाइडेड इनटू 2 logs. So you know, you can see this is being done perfectly. ऐसा this has been coated really well with castor sugar. And अभी हमें ये डो को फिर से फ्रिज में रखना है। अगेन नाउ you'll ask me why हम इसको वापस, no, okay, so yeah, so it is definitely not necessary to use castor sugar, but ये जो कुकी है इसमें बाहर जो क्रंची एक्सटीरियर है, तो castor sugar बेसिकली वो क्रंच देने में बहुत मदद करता है। तो अगर आपको नहीं यूज करना है, आप डेफिनेटली स्किप आउट कर सकते हो एंड ऑन castor sugar. However, I would recommend कि आप you know castor sugar यूज करें। Yeah, so अभी any other questions regarding this? लॉग कन्वर्ट करने, लॉग में बनाने के मेथड पे एनी अदर क्वेश्चंस इनल? ओके, सो अभी ये लॉग को हमने कर दिया। अगेन जैसे हमने पहले डो को एक एयर टाइट कंटेनर में रखा था या फिर हमने क्लिंग रैप किया था, तो अगेन फिर से ये जो लॉग है हमारा, हमें इसको एयर टाइट वे में सील करके फ्रिज में रखना है। सो मैंने आपको बोला था जिपलॉक बैग का। सो राइट नाउ आई विल शो यू कि एक जिपलॉक बैग में आप इसको कैसे रख सकते हो। एक आप जिपलॉक बैग ले लो, अच्छा सा, यू हैव टू मेक श्योर दैट इट्स क्लीन, सो आपका ये जो डो है खराब ना हो जाए। सो ये जिपलॉक बैग में आप आपके डो को ट्रांसफर कर सकते हो। मेरा डो अभी थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है बिकॉज ऑफ ऑल द नेटवर्क इश्यूज दैट वाज हैपनिंग राइट नाउ। सो मैं इसको इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ। देखो, यू सीन आई हैव ट्रांसफर्ड इट। मैं एक ही आपको इसमें ट्रांसफर करके बताऊंगी। सिंस आई हैव लॉस्ट द शेप ऑफ द डो, मैं क्या करूंगी, मैं इसको हल्का सा ऐसे ऐसे ये कर दूंगी, हल्का सा रोल कर दूंगी। सो व्हेन आई रोल इट, तो इसका वो जो लॉग शेप है वो रिटेन हो जाएगा। You know, so comparatively it's pretty much retained right now. आप इसको ऐसे फ्रिज में आप इसको रख सकते हो फ्रिज में। एंड अपना जो पहला मेथड था ऑफ यूजिंग द क्लिंग रैप, सेकंड वाला जो लॉग है मैं क्लिंग रैप में ही इसको चिल करूंगी इन द फ्रिज। एंड यू नो आई कैन स्मेल दैट आवर कुकीज, जो चॉकलेट साबले मैंने डाला था, इट इज ऑलमोस्ट डन राइट नाउ। सो हम इसको क्लिंग रैप करने के बाद वो भी चेक करेंगे। या सो आई हैव क्लिंग रैप्ड इट, फिर से एक बार रोल कर लिया है टू रिटेन द लॉग शेप। तब तक हम अपना कुकीज चेक करेंगे। इट इज ऑलमोस्ट डन। सो यू कैन सी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से मेरे ओवन में भी हो गया है। सो यू नो दिस इज हाउ दे शुड लुक लाइक, दे आर डन। दिस इज हाउ दे शुड लुक लाइक। मैं ओवन से निकालती हूँ, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो this is how since I have used Hershey's का special dark cocoa powder, that is why मेरा इसका जो color है it is pretty much you know darker as compared to maybe yours, but do not worry, आपका भी issue वैसा, मतलब आपको वैसा color नहीं है तो do not worry,
बट या दिस इज व्हेन यू टच दीज कुकीज तो वो है ना बहुत सॉफ्ट रहेंगे. सो दैट इज वाई प्लीज मेक श्योर कि आप जब भी इसको ट्रे को आप अवन से निकालते हो तभी आप कुकीज को तुरंत टच नहीं करते हो, बिकॉज अदरवाइज दे विल क्रम्बल. एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स आप उसको रहने दीजिए. आप 5 मिनट्स रहने दोगे, दे विल कूल डाउन एंड देन यू कैन सेवर दीज कुकीज. गेटिंग बैक ऑन द लॉग, तो ये जो लॉग हमने रोल कर लिया है, आपको इसको रेफ्रिजरेट करना है फॉर अगेन अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स. दिस इज जस्ट, अगर आपको अभी ही खाना है तो आप 30 मिनट्स में निकाल सकते हो. अगेन जो मैंने आपको बताया था अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर के थिकनेस पे कट करके ट्रे में डाल के ओवन में डालना है, बेक करना है. if आपको तुरंत नहीं खाना है, if you want to save it for later, this dough will be this dough will last for approximately 1 month. 1 month तक ये डो को कुछ होगा नहीं, तो आप 1 मंथ तक ये डो को रख सकते हो. बट कंडीशंस अप्लाई. आपको इसको एयर टाइट कंटेनर में या ऐसे क्लिंग रैप करके या जिपलॉक बैग में आपको स्टोर करना है जहाँ पे इसमें मॉइस्चर ना लगे और ये ड्राई आउट ना हो. दैट इज द ओनली की पॉइंट दैट जिससे आपका डो खराब हो सकता है इफ इसका इसका मॉइस्चर निकल जाए और ये ड्राई आउट हो जाए. अदर देन दैट आपको कोई और इश्यू नहीं होना चाहिए. सो जस्ट अ सेकेंड. ये while they are cooling, मैंने जो प्रीवियसली जो कुकीज बनाए हैं साबले कुकीज, मैंने जो फ्यू वेरिएशंस किए हैं मैं आपको वो बता देती हूँ. टिल दैट टाइम I had made these cookies yesterday. These are rose flavored cookies and ये मैंने थोड़े बड़े साइज में बनाए थे. बट मैंने इसमें एडिबल रोज वाटर डाला था एंड इसमें रोज पेटल्स डाले हुए थे. सो यू कैन सी ये बाहर से ऐसा क्रंची दिखता है बट ऐसा आप अंदर करोगे इट हैज अ वेरी सैंडी टेक्सचर, वेरी सैंडी टेक्सचर टू इट. ऑल्सो जो आज हमने जो बनाए प्लेन जो साबले कुकीज है, they will look somewhat like this. You have to bake till they are slightly golden brown, not too much golden, because otherwise they'll be overbaked. And not overbaked in that sense, but they'll be much crispier in texture, and what we want is the sandiness. So आप इसको we have to make sure that it is slightly golden. जैसा आप देख सक रहे हो पीछे से बैक से ऐसा होना चाहिए, आगे से ऐसा slightly golden, not entirely, because otherwise जो sandiness है वो चला जाएगा and what you will get is a crispy butter cookie, not a sable cookie. So yeah, I'll show you again. Hello, you all could not hear me right now, so I'll repeat whatever I said again. We can. Okay, so you don't have oven. Okay, so I have mentioned the process of making this on the stove top as well. मतलब गैस पे आप ये कुकी को कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ है. सिंपली आपको आपके जो प्रेशर कुकर है उसमें आप नीचे एक स्टैंड डाल दीजिए, उसके ऊपर आपका प्लेट डाल दीजिए, ग्रीस किया हुआ प्लेट जिससे कुकीज प्लेस्ड हो, एंड आप इसको बेक कर सकते हो अगेन एट अ लो टेम्परेचर, लोअर फ्लेम, दैट इज फॉर अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स. आपका हो जाना चाहिए. हाँ. So yeah, I'll show you इसका texture somewhat like this. Again अभी इसमें एक टिप है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. आप देख सकते हो कि इसमें आपको है ना साइड में ब्राउन कलर दिख रहा है. So here what I have done is मैंने instead of castor sugar what I have used is demerara sugar और brown sugar. ब्राउन शुगर एक कैरमलाइज टेस्ट देता है आपके कुकीज को, एंड जब आप ब्राउन शुगर यूज करते हो तभी वो टेस्ट में ही बहुत डिफरेंस आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है. तो डू नॉट वरी अगर आपके पास ब्राउन शुगर हो. रिमेम्बर अगेन कि आपका ब्राउन शुगर यही कंसिस्टेंसी का होना चाहिए. मवाना का अगर आप लेते हो तो आपको ऐसे कंसिस्टेंसी का मिलेगा. अगर आप ब्लू बर्ड का डेमरारा ले रहे हो तो एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लेना, उसको थोड़ा सा हल्का सा पाउडर फॉर्म कन्वर्ट कर लेना एंड देन यू कैन यूज इट फॉर कोटिंग. उसका टेस्ट भी बहुत सुपर आएगा एंड यू कैन यूज इट फॉर एनी टाइप इन एनी वेरिएंट दैट यू मेक. आप ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हो कोटिंग के लिए, आप कैस्टर शुगर भी यूज कर सकते हो, बोथ आर फाइन. So yeah, this is what I think they must have cooled by now.
No, they have not cooled exactly. It's still hot, very hot actually. Yeah, it's still a little hot right now. थोड़ा सा cool हो जाने पे I'll show you the texture of a freshly baked cookie. The freshly baked cookie will be much more softer in texture as compared to if the cookie lasts for a day. So do not worry अगर एक दिन के बाद आपका cookie थोड़ा सा हल्का सा crunchy ज्यादा हो गया तो but yeah, it will taste fine and you can enjoy these cookies with a cup of tea or coffee, no, preferably tea, and I'm sure you'll love it. Okay, so that's it from my end, folks. I hope if there are any questions, you can ask me right now again, and I'll solve it. Uh, is there any question right now? So for those who had baked along with me, आपका डो है ना, by the time this webinar ends, आपका डो will be chilled enough. तो आप तभी ही निकाल के आप उसको log form में बना के आप उसको रख सकते हैं in the fridge again, and then again in Hello? half an hour you can bake it. Yeah. Hello. Hello. Instead of हाँ, बोलो. rice flour, can we use something else? No. राइस फ्लावर इज वन थिंग जिसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो. राइस फ्लावर इसमें इम्पोर्टेंट इसके लिए है बिकॉज इसका जो सैंडी I can't टेक्सचर है. hear because there must be a network. Okay. I can hear you Hello. properly. Hello. Hello. I can hear you properly. Himanshi. Unmute કરવાનું છે. It has been unmuted, so mute કરવાનું છે કે શું microphone? Hello. Yeah, I can hear you properly. Just in case if you can hear me right now again, आप इसमें rice flour you cannot substitute rice flour because it is very important कि आपके cookie में वो texture हो, and rice flour will give you that sandy texture that you want in these cookies. Okay, caster sugar is somewhat a mix, in between grain sugar and powdered sugar. Basically हिंदी में अगर बोलूं तो आप अगर आपका जो sugar है basic जो घर में जो granulated sugar है, आप उसको थोड़ा सा pulse कर करके अगर आप grind करोगे and वो थोड़ा सा करकरा रखोगे ना, उसको हम caster sugar बोलते हैं. caster sugar बहुत बारीक होता है, powder sugar के तरह नहीं. आप इसमें थोड़े से छोटे छोटे grains देख सकते हो, पूरा powder form नहीं होता है. Yeah, I hope I have solved your query. Yes. Any other questions? Hello. 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 Yeah, I can hear you. Hi. Yeah. Okay. One more thing, you said in making the icing sugar, like the granulated sugar should be grounded in the mixer, and along with that, one more thing is to be added. What is to be added? The corn flour, no? Corn flour. Yes, corn Okay. flour. Okay. So after grinding it in the mixer and then add the corn flour in that. Yeah, you can after grinding you can add, or you can before grinding also if you add the corn flour, that will also be okay. That really Both of them it's of no would be issue mixed अगर आप together. पहले डालते हो या बाद में. Yeah. So it's of no issue. आप कभी भी डालो, बस इतना make sure Okay. करो कि corn flour properly Okay. And mix हो जा रहा है. while mixing it, and while हाँ. one more thing, while mixing हाँ. the butter, Yes. first we have to take the butter and then add the icing sugar. Then add the icing sugar. Yes. Then add the icing And then sugar. we have to mix that first, and then add then add the rice flour. Yes, all the dry ingredients, not just rice flour. आपका जितना भी dry ingredients है, आपका मैदा है, rice flour है, आप दोनों को साथ में, if cocoa powder है तो वो भी, तो आप साथ में कर लोगे तभी ही. तो मतलब basically इसमें अच्छा, कैसे आपका जो भी, okay, बोलो. Butter के साथ all at the same time everything, like all the ingredients should be mixed together with the butter. It's not Yes, one by one. No, not Okay, one by one. Not one by one. So अगर okay, so in case आप And Nutella भी one कर with रहे the हो, chocolate chips also. yeah, so chocolate chips भी आप to साथ में add डाल to दो. Yes. आप जब भी मैदा डाल रहे हो, आप जब भी राइस फ्लावर डाल रहे हो, आप तभी चॉकलेट चिप्स भी डाल दोगे तो भी चलेगा.
Okay, okay, fine. Okay. And the vanilla Yeah. essence should be added at the end or while Okay. mixing it? No. Okay. So vanilla essence is the middle step. जब भी आपका बटर और शुगर क्रीम हो चुका है, उसके बाद आप वेनिला एसेंस डालोगे एंड उसके बाद आप आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालोगे. सो अगर आप Okay, नटेला okay, भी यूज कर रहे हो तो मतलब जो वेनिला एसेंस वाला जो स्टेज है वही टाइम पे आप आपका नटेला भी डालोगे. सो बेसिकली वेट इंग्रेडिएंट्स आप पहले डाल रहे हो, ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप बाद में डाल रहे हो. okay, okay, okay. Thank you very much. Welcome. So I'll show you this cookie is cooled right now. So you can see it's crispy from the outside, but when you do Hey, it, Himanshu, it has a pretty come sandy back to the texture number. from the inside. So when when you put it in your mouth, it will have a very, it will actually melt in your mouth. If it does not, if it, if you feel that it's crumbly, तो आपका जो कुकी है वो हल्का सा ओवर बेक हो चुका है. इन दैट केस आप जब नेक्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपको पता है कि आपको थोड़ा कम टाइम के लिए रखना है उसको इन द गैस और इन द ओवन और माइक्रोवेव कन्वेक्शन, विच एवर मोड यू आर यूजिंग. So yeah, that's it from my end now. Okay, one more thing. Just one more thing. Sorry. If there are any other queries, अगर आपने अभी नहीं बनाया है, आप बाद में बना रहे हो, तो मेरा जो नंबर है, मैंने जो रेसिपी शीट डाला था तभी डाला था, मेरा नंबर है उसमें, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो. एंड आई लेट यू नो जो भी आपका क्वेरी है तभी सॉल्व कर दूंगी. एंड यस, इफ यू नॉट जॉइन द ग्रुप, आप वहां पे भी ज्वाइन कर लो. तो आई विल सेंड द रेसिपी अगेन. आई विल आल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ द मेथड on how to make it on the group itself. Thank you, Ayushi, for the lovely, tempting and tasty webinar. तो किसी को और कुछ क्वेरीज है तो अभी पूछ सकते हो, वरना हमारा BYF का पेज है, उस इंस्टाग्राम पेजेस एंड फेसबुक पेजेस है, उस पे हमें आपके क्वेरीज बता सकते हो. और आयुषी का खुद का एक कुकी टाइम बाय आयुषी करके एक इंस्टाग्राम पेज है, उस पे बहुत सारे केक की रेसिपीज एंड फोटोज होते हैं. तो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप वो उसको फॉलो कर सकते हो. आयुषी, देयर इज सम क्वेश्चन. Yeah, माइक्रोवेविंग फॉर हाउ मच टाइम. सो इसमें माइक्रोवेव नहीं, मतलब आप माइक्रोवेव अगर है सिर्फ तो आप इसको माइक्रोवेव में नहीं बना पाओगे, आपको माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बनाना है. एंड कन्वेक्शन, माइक्रोवेव कन्वेक्शन है अगर आपके पास, तो एट 150 डिग्री सेल्सियस फॉर अप्रोक्सीमेटली 15 minutes. But then it differs from oven to oven. So आपको वो चेक करते रहना पड़ेगा after 12 minutes कि आपका हुआ है या नहीं. But approximately 15 के अंदर आपका हो जाना चाहिए. You're welcome. So I think that's all for today. I thank you everyone on behalf of entire Borivali Youth Forum for your patience and attending this seminar. अभी नेक्स्ट सेमिनार जो होगा वो संडे को होगा, और वो होगा कम्युनिकेशन स्किल्स बाय हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स बाय हीर शाह एट 4 PM ओनली. सो हम लोग जल्दी ही रजिस्ट्रेशन लिंक और डिटेल्स हम लोग ग्रुप से फॉरवर्ड कर देंगे. तो और हमारे इंस्टाग्राम और BYF पेज से भी ज्वाइन हो, मतलब कांटेक्ट में रहिए, टच में रहिए, सो आपको उधर भी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. तो टिल देन, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. Yeah, just a second. Suchi का एक question है. हाँ, when you remove the log out of the fridge, no, it should be hard. It should actually be hard, so that जब आप कट कर रहे हो तब वो बहुत easily कट हो. जैसे मैंने बताया कि बहुत easily कट हो रहा था and cracks नहीं आ रहे थे. तो अगर cracks आ रहा है मतलब आपका dough is not chilled properly, तो आप again थोड़े time के लिए रख सकते हो. But the dough should actually be firm. Yeah, that's it. Okay. So I would request all the BYF members to stay in the meeting. Rest everybody can leave if they don't have any queries. Thank you so much. Thank you so much for attending. Thank you so much, everybody.